Hi everyone, my name is Martin Yadav and welcome to math2code.com। आज हम देखेंगे कि हम पहला C++ प्रोग्राम Turbo C++ और Dave C++ में कैसे लिख सकते हैं। Today we are going to see that how to write our first C++ program into Turbo C++ or into Dave C++. Now, let me tell you that why I have chosen Turbo C++ and Dave C++ as the option to write our C++ programs. Because in CBSE, they are preferring Turbo C++ as a software, or you can say an IDE to write C++ programs, and Dave C++ is a software which I like to write C++ programs into, and it gives you the answers according to a 32-bit machine. So that is the reason I'll be showing you the programs on Turbo C++ and on Dave C++ also. But as time goes on, I'll be showing you only Turbo C++ programs, because at last you have to give your practical exam on a software that is Turbo C++. Okay, great. So I should show you that how to install Turbo C++. For that, you need to go and download Turbo C++ for 32-bit machine or for 64-bit machine. Now right now, my machine is a 32-bit machine. Therefore, I'll show you how to install Turbo C++ in a 32-bit machine. Now that can be Windows 7 also, Windows 8 also, no problem with that. You will be having a folder in which these kind of files will be there with you. Just go and double click or enter on setup.exe, and there will be a dialog box which will be coming in front of you. After some time, a dialog box which will say that press on next, and you can actually go and install your software. Now right now I have Turbo C++ installed in my machine, therefore I'll not install it once again. But when you have this window in front of you, it will actually go and install Turbo C++ in C drive with a folder like this. Let me show you the folder. So over here you can see that there is a folder Turbo C3, and inside that you have all these files with you. Great. So this was a small introduction about what software we are going to use, and after that, now let's start with Turbo C++ and write our first program into Turbo C++. Okay, great. So let's start it. Till the time it starts, let me tell you that it is very easy to write a Turbo C++ a C++ program, because it's like a real life example. If you relate C++ programming with real life, you will surely understand it. Now, as I'm going to tell you how to write your first C++ program, I'm going to give you some real life examples also, so that you can understand it quickly and very clearly. Okay, so this is the IDE which you have in front of you. Now this is a little bit boring IDE, but it is very powerful. When you have this IDE in front of you, first you have to go to File and click on New. This kind of a screen will come in front of you. Now right now you see that only a part of this is seen in blue color. If you want to maximize it, just go and click over here. You can see I'm taking my cursor over here, just go and click over here. So now let us write our first C++ program. Now to write a first C++ program, you should know, or you should have a concept, you should understand a concept. Concept कुछ ऐसा है. Now I'll be speaking in Hindi and English both, so that everyone can understand it. Concept कुछ ऐसा है कि suppose अगर आपके स्कूल में या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर आपको ओपन बुक एग्जाम या ओपन बुक टेस्ट देने के लिए कहा गया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए पहले वो बुक खोलनी पड़ेगी, उस पेज पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो आंसर है. तो वैसे ही जब आप एक C++ प्रोग्राम लिखते हो, तो उसके लिए आपको कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि उसके कुछ आंसर्स छिपे होते हैं, या प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कहा जाऊं तो उसके प्रोटोटाइप या सिंटैक्स छुपे होते हैं, जो कि आप अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं. इसलिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा जिसको कि हेडर फाइल बोलते हैं, और आपको आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल जोड़नी पड़ेगी. तो यहाँ पे अपने पास जब जैसे कि आप अभी CBSE का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं और आप Turbo C++ यूज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा के लिए दो हेडर फाइल याद रखनी है. पहली हेडर फाइल है iostream.h और दूसरी हेडर फाइल है conio.h, CONI और conio.h. ओके,
fine. So iostream.h मतलब input output stream dot header file. Okay, fine. So we will write our first program. अब हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये हैश क्यों लगाया हुआ है और ये इंक्लूड क्या है. अब इस चीज को मैं 3-4 भागों में बांटना चाहूंगा. आपका पहला वाला जो है वो है हैश, सेकेंड है इंक्लूड, उसके बाद एक एंगुलर ब्रैकेट दिया गया है, उसके बाद आयोस्ट्रीम लिखा है, .h भी लिखा हुआ है और फिर वो एंगुलर ब्रैकेट बंद किया गया है. ये तरीका है लिखने का एक C++ प्रोग्राम की हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए. ओके, अभी हैश मतलब क्या होता है. अब ये समझ कर लीजिए कि आप ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाने वाला है वेरीफाई होने के लिए. वेरीफाई होने के लिए मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक ओपन बुक एग्जाम दे रहे हो, तो वो ओपन बुक एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम कोई ना कोई चेक करेगा, आपका कोई पेपर चेक करेगा. तो वैसे ही जब आप ये प्रोग्राम लिखते हो उसके बाद ये प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, और आप एक तरह से कह सकते हैं कि कंपाइल करना मतलब कि आपका प्रोग्राम चेक करवाना. ओके, तो जब आपका ये प्रोग्राम चेक होता है तो हैश इंक्लूड iostream.h जब आप लिखते हो तो ये एक प्री प्रोसेसर चेक करता है और उस प्री प्रोसेसर को मालूम चलता है कि जो लाइन के सामने हैश लगा हुआ है वो मेरे लिए है. मेरे लिए मतलब प्री प्रोसेसर के लिए है और वो उसके ऊपर कुछ काम करने वाला है. इंक्लूड इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड. इंक्लूड जो है वो एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है जो कि जिसका मतलब कि होता है किसी चीज को अपने अंदर समा लेना या फिर इंक्लूड कर लेना. तो यहाँ पे अभी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि iostream.h फाइल जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर उसे एक्सपांड कर दिया जाए या फिर इंक्लूड कर दिया जाए. हम आगे जाके कुछ प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि 5 से 6 लाइन का होगा, बट वो 5 से 6 लाइन के इसमें हम लोग कुछ ऐसे शब्द या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं जो कि मेंशन किए हुए हैं किसमें, iostream.h में. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि आपका ओपन बुक टेस्ट होगा तो उसके अंदर कुछ आंसर्स छुपे होंगे जो कि आप ढूंढ के निकालोगे. वैसे ही आप जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसमें से कुछ कीवर्ड्स होंगे जिसका कि सिंटैक्स मतलब उसको लिखने का तरीका जो है वो iostream.h में लिखा हुआ होगा. इसलिए आपको iostream.h फाइल जो है आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है. होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग. आई जस्ट रिपीट इट इन इंग्लिश. You have to include iostream.h file in your program because it is having the syntax of prototype for the keywords which you are going to use in your program. Okay, and the next file which you have to include is conio.h. Great. So now iostream. Now why is it important to include these two files? Because in our program we are going to use all those keywords. हम वो सारे शब्द या फिर कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं इन्हीं दो फाइल में से जो कि हमें यूज होने वाले हैं. यूज होने वाले मतलब जो कि हमें उपयोग में आने वाले हैं, और उसके लिए जो भी तरीका है लिखने का वो इनके अंदर छुपा हुआ है जो कि हम लोग उसमें से देखेंगे. और प्रोग्राम आपका जो कंपाइलर है वो उसमें से देख के हमें बताएगा कि आपका जो तरीका है लिखने का प्रोग्राम वो सही है या गलत है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे अभी मैंने और एक लाइन लिखी है, एक नहीं, मैंने यहाँ पे समझो 3 लाइनें और लिखी हैं. चलो बांटते हैं उन 3 लाइनों को. लेट्स अंडरस्टैंड एंड सेपरेट आउट वट एवर लाइन्स आई हैव रिटन ओवर देयर. फर्स्ट लाइन सेज दैट void main. Second line is a curly bracket. Then there is a blank line and then there is a closing curly bracket. जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है उसमें void लिखा हुआ है, main लिखा हुआ है, वहाँ पे पैरेंथेसिस या फिर आप कह सकते हैं कि 2 राउंड ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट, फिर एक नॉर्मल ब्लैंक लाइन है और उसके बाद फिर एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है. ग्रेट. तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. पहले तो आप ये समझिए कि आपको आगे जाके ये मालूम चलने वाला है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में आपको 5 तरह के डेटा टाइप देखने के लिए मिलेंगे. तो इन शॉर्ट अभी मुझे बताना नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें, और देन ऑल्सो आप थोड़ा सा समझ ले, इसलिए मैं आपको वो 5 चीज़ें बता देता हूँ. आपको डेटा टाइप सुनने के लिए मिलेगा और डेटा टाइप के अंदर आपको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड, इन 5 चीज़ों के बारे में सुनने के लिए मिलेगा. तो उसमें से एक जो है वो है वॉइड. वॉइड मतलब आपके इसमें सिंपल इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं मतलब कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे वॉइड लिखना होता है. इतना बस समझ लिए. मैं आपके लिए आसान करके ये रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता है, whenever you don't want to mention any data type and you want to show that there is nothing over here, you have to write void over there.
Okay, great. So in simpler terms, if you're not returning anything from your function, you have to write void over there. हिंदी में बताऊं तो अगर आप अपने प्रोग्राम में से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पे void लिखना होता है. नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी मेन. अब मेन जो है वो एक स्पेशल फंक्शन है जिसको कि हमें हर C++ प्रोग्राम में लिखना ही होता है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो C++ का प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होगा? वो इस मेन फंक्शन में से शुरू होगा. योर C++ प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन. देयरफॉर योर मेन फंक्शन इज कॉल्ड एज द एंट्री पॉइंट फंक्शन. इसलिए आपके मेन फंक्शन को एंट्री पॉइंट फंक्शन भी कहा जाता है. अब क्या आप मेन की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं? फिलहाल के लिए बस इतना समझ लें कि मेन की जगह पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं. अगर आप एडवांस प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग मेन की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं. बट अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचिए. बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग मेन ही लिखते हैं वहाँ पे, और हमेशा मेन ही लिखना अच्छा होता है. ओके, मेन के बाद वहाँ पे हम लोगों ने 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं. अब ये जो मेन है वो एक फंक्शन का नाम है, इसलिए समझिए कि उसके सामने ये 2 ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है. क्या ये ब्रैकेट के अंदर हम कभी कुछ नहीं लिखते? नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, बट फिलहाल आपका ये स्टार्ट है इसलिए हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे और हम इसे बहुत ईजी रखेंगे. ओके, मीन्स इनसाइड द मेन ब्रैकेट्स मीन्स द राउंड ब्रैकेट्स कैन वी राइट समथिंग? यस, वी कैन राइट, बट राइट नाउ आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू. therefore I am not writing anything inside those brackets. Around brackets I am talking about. Okay, now please understand this, that what do you mean by that curly bracket and closing curly bracket. अभी समझिए कि जो opening curly bracket है और closing curly bracket उसका क्या मतलब है. अब एक बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जो भी इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, उसको कभी ना कभी मरना होता है. वैसे ही आपका ये जो प्रोग्राम है उसकी जो मेन फंक्शन की लाइफ है वो उस कर्ली ब्रैकेट पे स्टार्ट होती है, और जब उसका एंड आने वाला होता है, समझ सिंपल भाषा में जब उसको मरना होता है तो वो जो कर्ली ब्रैकेट जब आता है तो उसका डेथ हो जाता है. मीन्स दैट फंक्शन गेट्स ओवर. सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट each and every function of yours is going to have a opening curly bracket and a closing curly bracket. आपका कोई भी फंक्शन जब बनता है या फिर आप उसका डेफिनेशन लिखने के लिए जाते हो तो उसके लिए ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देना ज़रूरी है, अनिवार्य है. ओके, नाउ इसके अंदर लिखना क्या है? अभी जो ये पहला प्रोग्राम है आपका, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल का नेम जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाऊंगा. ओके, सो सिंपल सी लाइन लेते हैं, सी आउट तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे. अभी इस लाइन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. चलो इनको भी सेपरेट करते हैं. नाउ द लाइन विच आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, इन दैट आल्सो यू विल बी एबल टू सी मेनी थिंग्स. नाउ लेट अस सेपरेट आउट दीज थिंग्स. पहली जो चीज़ है वो है सी आउट. उसका मतलब होता है कंसोल आउट. उसके सामने आप देखोगे कुछ लेस देन सिंबल्स रखाए हुए हैं. फिलहाल के लिए मैं उसे लेस देन सिंबल्स ही बोलूँगा ताकि वो आसान हो आपको समझने में. उसके लिए कुछ एक अलग नाम है क्योंकि मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में आप मेरे मुँह से सुनेंगे. ओके, उसके बाद 2 डबल कोट्स है और डबल कोट्स के अंदर मैंने चैनल का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद सेमीकोलन. तो उसका क्या मतलब है? अब आपके पूरे C++ के कोर्स के दौरान आप 2 चीज़ें हमेशा देखोगे, सी इन और सी आउट, दैट इज कंसोल आउट, कंसोल इन. सी आउट का ये मतलब होता है कि जो भी आप आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो वो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है. अभी फिलहाल के लिए ये जो मैंने दिया हुआ है वो डायरेक्ट स्ट्रिंग है, इसलिए उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है. तो इतना समझिए कि अगर आपको कोई डायरेक्ट नाम, मतलब कि आपका नाम और किसी का नाम या कोई भी तरह की स्ट्रिंग मतलब कि जो भी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, अगर वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने हैं तो उसको डबल कोट्स में लिखना होता है. और वो लिखने से पहले आपको वो लेस देन सिंबल लिखना होता है क्योंकि ये तरीका है सी आउट लिखने का. इफ यू वांट टू प्रिंट अ नेम ऑन योर स्क्रीन then you have to use this kind of syntax for printing the name on your screen. Now this syntax includes of what? A cout keyword, then a less than symbol, and in double quotes whatever name you want to print. Okay, I told you that this cout has a prototype or a syntax written in iostream.h. Are you getting this? Okay,
So cout is a function, or you can say it is a kind of thing which has a prototype which is written inside iostream.h. Great. तो cout जो है इसका तरीका जो है लिखने का, इसका जो भी रूल है लिखने के वो iostream.h में लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने iostream.h फाइल जो है इसमें इंक्लूड की है। होप सो आप सबको समझ गया होगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक सेमीकोलन लगाया है। अब वो सेमीकोलन का मतलब क्या है? जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है, उसके लिए हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है। Whenever you want to tell that your statement has completed in your C++ program, you have to give a semicolon over there. The same way we give a full stop in English to understand my statement is over, we have to give a full stop. Same way in C++ program, to understand that my statement is over, I have to give a semicolon. जैसे कि आप इंग्लिश भाषा में एक स्टेटमेंट खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें एट लास्ट सेमीकोलन लगाना होता है। ओके, सो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट लिख लिया है हम लोगों ने। हम एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, और आप आपके स्क्रीन पे जाके कंपाइल, यहाँ पे कंपाइल में जाके कंपाइल कह सकते हैं। जैसे आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन्स कंपाइल्ड 1028। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हम लोगों ने कितनी लाइन लिखी हुई है? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 लाइन लिखी हुई है, और ये कह रहा है कि 1028 लाइन्स कंपाइल्ड। चलो इस चीज़ को 2 मिनट के लिए अलग रखते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर या वार्निंग आई है क्या। क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है? नहीं है, 0 0 एरर। क्या हमारे प्रोग्राम में कोई वार्निंग है? नहीं, 0 0। ग्रेट। अब ये कह रहा है कि एक कोई भी की दबाइए। चलो की दबा दिया। उसके बाद हमें इसे रन करना है। रन करने के लिए आप इस बटन के ऊपर जाइए और यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि रन करने के बाद हमारे सामने कुछ आया नहीं। सिंस वी हैव रन दिस प्रोग्राम, कंपाइल दिस प्रोग्राम, नथिंग हैज कम इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, अब अभी ध्यान देके सुनना, एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें हमारे प्रोग्राम में गेट ch नाम की चीज़ क्यों लिखनी होती है। ओके, समझिए कि एक आदमी है जो कि जिसका कि जन्म हुआ है, बड़ा हो गया, उसके बाद उसको बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है, तो उसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो होता क्या है, जब उसकी डेथ होने वाली होती है तो वो डेथ होने से पहले उसकी जान अटक जाती है, और वो कहता है कि जब तक मुझे बिरयानी नहीं मिलेगी तब तक मेरी जान नहीं जाएगी। ओके, इट्स जस्ट एन कंसेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। सो होता क्या है कि वो ये कहता है कि जब तक मुझे बिरयानी नहीं मिलेगी तब तक मेरी जान नहीं जाएगी। तो वो अटका किस चीज़ के लिए है? जब तक कि उसे बिरयानी नहीं मिलेगी उसकी जो जान है वो निकलने नहीं भूली। तो उसको कोई बिरयानी ला के देता है, वो बिरयानी खा लेता है, और उसके बाद उसकी जान आराम से निकल जाती है। तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम में अगर हमें किसी चीज़ को अटका के रखना है, मतलब कि अगर हमें हमारी विंडो को, जो कि आउटपुट विंडो है, जो कि हमारे सामने आई नहीं है अभी तक, उसे अगर हमें वहाँ पे फ्रीज करके रखना है, अटका के रखना है, तो उसे हमें एक लालच देना पड़ेगा। और वो लालच किस चीज़ से हम लोग दे सकते हैं? वो लालच हमें गेट ch इस फंक्शन के थ्रू देना पड़ेगा। अब गेट ch मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गेट ch? गेट ch मीन्स दैट टिल द टाइम, नाउ व्हेनेवर यू रन योर प्रोग्राम and after running the program, till the time you don't press any keyword, or you can say any key on your keyboard, that thing is not going to go off। मतलब कि तब तक आपकी स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन आपके सामने वैसे की वैसे रहेगी। या फिर आप कह सकते हो टू फ्रीज योर आउटपुट स्क्रीन यू हैव टू यूज गेट ch function। ओके, so it is not true that to freeze your output window, it's only that till the time you don't press any key on your keyboard, that output window will be in front of you। Now let us compile the program and run the program। Now this time I'm not going to compile my program through by our mouse, but I'll be doing it through our keyboard। So the keyboard shortcut for compiling the program is Alt F9. It is compiled, and to run it, it is Control F9. Now you are able to see that we have printed something on the screen। Now you see that I have written only and only mat2code.com only one time in my program। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जब प्रोग्राम लिखा था तो उस टाइम पे मैंने मेरे प्रोग्राम में mat2code.com ये सिर्फ एक बार लिखा था, और यहाँ पे देखेंगे तो mat2code.com 2 बार प्रिंट हुआ है। अभी मैंने आपको पिछली बार जब रन करके दिखाया था प्रोग्राम, तो उस टाइम पे हमारा प्रोग्राम रन हुआ था, पर आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने नहीं आई थी। तो वो जो पहला mat2code.com है जो प्रिंट हुआ है, वो पिछली बार का आउटपुट है।
अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम जब भी रन हो तो मुझे मेरा आउटपुट दिखे, पिछला आउटपुट मुझे ना दिखे. All of you getting this? I want that whenever I run my program, I should see only my output and I should not see the previous output. For that, इसके लिए हमें हमारे प्रोग्राम में जाके सबसे ऊपर CLR SCR नाम का फंक्शन लिखना होगा. जब हम हमारे प्रोग्राम में CLR SCR नाम का फंक्शन इंक्लूड या फिर हम लिखते हैं या कॉल करते हैं, अब होगा क्या, जब आपका आउटपुट आपके सामने आएगा तो उसके पहले आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, उसमें से सब कुछ मिटा दिया जाएगा और फिर आपका आउटपुट आपके सामने दिखाया जाएगा. अब फिर से इसे कंपाइल करते हैं, Alt F9 और Control F9, और अब आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुट आया है. मेरे स्क्रीन के ऊपर matricode.com लिख के आया है. अब getch जो है और clear, that is clear screen, CLR SCR, इन दोनों के बारे में आपके conio.hq के अंदर लिखा हुआ है. और आपका जो cout फंक्शन है या फिर cout का जो ऑब्जेक्ट है, या फिर अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो cout हमने लिखा हुआ है वो iostream.h के अंदर लिखा हुआ है. होप सो आपको जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्लियर हो गया होगा. अब आपको मैं एक दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा या फिर दिखाना चाहूँगा कि ये जो iostream.h है और ये जो conio.h है वो कोई जादू नहीं है. वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही C ड्राइव के अंदर जो टर्बो C3 नाम का फोल्डर था उसके अंदर हैं. चलो हम उसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके कि ये फाइल दिखती कैसी है और कैसी होती है करके. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डेव C++ के ऊपर ये प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, बट इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम लोग टर्बो C++ का ही यूज़ करेंगे. होप सो आपको फर्स्ट प्रोग्राम एकदम क्लियर हो गया होगा. टर्बो C++ की जो लिंक है, मतलब डाउनलोड करने की लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और ये जो प्रोग्राम है वो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं. Once you try this program, you will get that confidence that how to write a C++ program and how to compile it and run it. Once you are able to do the first program, it will be very easy for you to understand all other programs which I'll be taking in the future videos. Okay, so अभी इसको बंद करने के लिए या क्विट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे नहीं, सॉरी, एक बात मैं भूल गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. अब जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसे सेव कर लीजिए. तो सेव करने के लिए फाइल पे जाइए, सेव या फिर सेव एज बोलिए. फर्स्ट टाइम अगर होगा तो सेव एज बोलिए, उसके बाद फिर आप सेव पे जा सकते हैं. अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा. अब फाइल का नाम देने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट प्रोग्राम .cpp. ये ध्यान रखना कि .cpp ज़रूर लिखना ताकि आपका कंपाइलर समझ सके कि ये जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ वो C++ प्रोग्राम है. ठीक है, और उसके बाद एंटर कर दीजिए. आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके प्रोग्राम के ऊपर उसका नाम आ चुका है, मतलब ये जो नीली विंडो है उसके ऊपर ये नाम आ चुका है. दिस इज हाउ यू एक्चुअली सेव योर प्रोग्राम. Once you save your program, you will see that is saved, and when you next time you want to open it, you can just go and click on open. Next time जब भी आप ओपन करना चाहते हैं आप ओपन पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम .cpp सेव्ड है. इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, आपका प्रोग्राम खुल जाएगा. तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था. ओके, आप देख सकते हैं. वापस से मैं एक बार आपको बता देता हूँ. आप यहाँ पे जाइए और ओपन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट प्रोग्राम .cpp दिख जाएगा. दैट्स इट. अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं अभी इसको क्विट करने वाला हूँ, मतलब कि बंद करने वाला हूँ. तो उसको क्विट के लिए Alt X दबा सकते हैं या फिर आप क्विट दबा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्विट पे क्लिक किया और मैं अपने टर्बो C++ के बाहर आ चुका हूँ. ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये होता कहाँ पे है. ये जो सारी चीज़ें हम लोग ढूंढ रहे थे अभी वो कहाँ पे होती है. हम एक काम करते हैं, यहाँ पे iostream लिख देते हैं. आप देखेंगे यहाँ पे iostream.h लिखा हुआ है और वो किस चीज़ के अंदर है, C टर्बो C3 इंक्लूड के अंदर लिखा हुआ है. आप समझ रहे हैं. ओके, ग्रेट. सो अगर इसको खोल के देखना है तो राइट क्लिक कीजिए और इसको हम लोग ओपन विथ नोटपैड ++ कर देते हैं. एक बार ये नोटपैड ++ के साथ खुल गया तो उसके अंदर मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा कि इसके अंदर cout कहाँ पे होता है. तो बंद कर देते हैं. आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्सटर्न iostream cout लिखा हुआ है. तो इसके अंदर से ही हमें मालूम चलता है कि cout को कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है. इसके सारे रूल्स इसके अंदर लिखे होते हैं. इसलिए हमें जो iostream.h फाइल है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है.
So I hope so that all of you understand what I am trying to teach you about C++. And if you have any comment, if you want to share anything, or if any information which you think so which I am giving to you is not true or not right, you can write it in comment or you can mail me. That's it for today. My name is Martin and this was math2code.com. Thank you. Bye bye.